عید والے دن جو قتل ہوا ہے محمد زوار، وہ میرا بھائی تھا۔ مقتول کے پاس 3 لاکھ سے زیادہ پیسے تھے، فائر مارا ویرانے میں جا کے اور پیسے اس کے نکال کے موبائل نکال کے وہ یہ نا پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ اچھا اچھا مجھے اس بات کے تھے کہ اس کے پاس پیسے کافی ہیں، بس پھر لالچ میں آ گیا تھا، بس شیطان کو غلبہ کر گیا بس۔ یہ شیطان تم پہ کب کب حاوی ہوتا ہے؟ جب تم تیزاب پھینکتے ہو، جب تم نے پہلا قتل کیا، واردات کی، چوری کی، ڈکیتی کی، تب حاوی ہوا۔ پھر تم عدالت میں گئے، وہاں سے تم جج فیصلہ سنا رہا ہے اور تم عدالت سے بھاگ رہے ہو، تب حاوی ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے تم خود شیطان ہو۔ انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو گئے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکات۔ میں موجود ہوں فیصل آباد میں، جہاں پر دوست ہی دوست کی جان کا دشمن بن گیا۔ اس نے اپنے ہی دوست کو محض چند پیسوں کا بہانہ بنا کر قتل کر دیا، لیکن اصل قتل کی وجہ کیا تھی، یہ آج ٹیم پکار بے نقاب کرے گی۔ ناظرین، اس وقت مدعی فیملی میرے ساتھ موجود ہے۔ ان کا اپنا پیارا دنیا میں نہیں رہا، یہ شاید اسے ڈھونڈ رہے تھے، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ جس نے قتل کیا ان کی کیا دشمنی ہے اس فیملی کے ساتھ، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو جی میری ٹیم کی جانب سے، میرے ادارے کی جانب سے اور تمام دیکھنے والے پاکستانیوں کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ آپ لوگوں کو جو دکھ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے پکار بن سکیں۔ آپ کا کیا رشتہ تھا مقتول سے، اس کے ساتھ یہ بربری جس نے ڈھائی وہ کون تھا؟ وہ میرا بھائی تھا۔ جو قتل ہوا ہے محمد زوار، وہ میرا بھائی تھا، سگا بھائی تھا، سکا بھائی تھا۔ اچھا، آپ کا بھائی ڈسیبل بھی تھا، اس کی سماعت نہیں ہاں تھی؟ جی، وہ کم سنتا تھا، اچھا، وہ اعلیٰ کان میں اعلیٰ لگا سماعت کے۔ لگاتا ہاں جی، تھا۔ آپ کا بھائی کرتا کیا تھا؟ میرا بھائی مستقل کام کرتا تھا۔ وہ لاہور میں کوٹ لاکھپت میں مزدوری بھی کی ہے اس نے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے بھائی کے؟ میرے بھائی کے 2 بچے ہیں۔ بیٹیاں دونوں؟ ہاں جی، 2 بیٹیاں اور وہ ہیں۔ معذور ہیں؟ ہاں جی، وہ مزدور اس طرح نہیں ہے، وہ کڑک کی روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ کوئی بیماری ہے انہیں؟ ہاں جی، بیماری ہے، وہ کڑک کی روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ جن کو ایک ڈس آرڈر ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ ان کا واحد سہارا، واحد کفیل تھا یہ ان کا باپ تھا۔ جی، اس کے علاوہ کوئی اس کا بڑا بیٹا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فوت ہو گیا۔ بیٹا اس کا ہے تھی، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا، 8 سال کا تھا۔ اچھا، ہاں جی، تو آپ کے بھائی کی عمر کتنی تھی؟ وہ 35 سال تھی، ابھی نوجوان تھا وہ۔ ہاں جی، وہ آپ کا بھائی کیا لڑاکا تھا؟ کسی سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا اس کا؟ کوئی دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میرا بھائی مزدوری کرتا تھا مستقل، شہر میں چلے جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ دشمنی بھی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری۔ تو جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا وہ جاننے والا ہی ہے آپ لوگوں کا؟ وہ جاننے والا نہیں ہے، وہ کم از کم 3 کلومیٹر وہ دور بیٹھا ہے ہمارے۔ تو آپ کے بھائی کی اس کے ساتھ سلام دعا کیسے ہوئی؟ وہ اللہ جانتا ہے ابھی کیسے ہوئی۔ آپ لوگوں کے گھر میں آنا جانا نہیں تھا اس کا؟ نہیں، اس میں نے سنا آپ کے چچا کے ساتھ عداوت تھی؟ نہیں، وہ ماما کے ساتھ تھا، ماما کے ساتھ لڑائی نہیں تھا۔ ہاں۔ اس نے پیسے لیے تھے تھوڑے سے، وہ پیسے اس نے دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ کے بھائی کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی اس کے پاس؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس مارن والا جب ظالم تھا نا، اس کو پتہ ہی بھی اس کو اتنا پیسہ ہے اس کے پاس۔ 5 مرلے میرے والد نے دی تھی، وہ اس نے بیچ دیا۔ اس نے بولا بھی میں نا کوئی روڈ کے قریب میں لے لیتا ہوں، کوئی دکان بناؤں گا، کوئی چیز وغیرہ لگا کے بیٹھا رہوں گا، میرے کو کام نہیں ہوتا، ادھر ادھر محنت زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ زمین کے پیسے تھے اس کے پاس؟ اس کے پاس وہ اکٹھے کر رہا تھا پیسے۔ یعنی کہ آپ کے بھائی کے پاس کل کوئی 2-3 لاکھ روپے کے قریب اماؤنٹ تھی؟ ہاں جی، اتنا۔ ہاں جی، 3,17,000۔ ہاں۔ اچھا، آپ کے بھائی کی جیب میں ہر وقت کیش رہتا تھا یا بینک میں رکھے وہ ہوئے؟ اس طرح تھا نا، وہ اس طرح کا بندہ تھا، وہ دل میں کوئی چیز نہیں رکھتا تھا، تو سب کو بتا سب کو بتاتا تھا میرے پاس اتنا پیسے ہیں۔ یہ جو شخص تھا اس کو علم تھا قاتل کو کہ آپ کے بھائی کے پاس پیسے ہیں؟ ہاں، اس کو علم تھا بھی آپ کا پیسے۔ بھائی پیسے گھر پہ نہیں رکھتا تھا، ہر وقت جیب میں رکھتا تھا؟ جیب بھی رکھتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا نا، قربانی کے قریب آنے سے نا وہ کوئی مال مول بھی لے لیتا تھا اس طرح کا۔ اس دن کوئی مال لینے جا رہا تھا؟ اس بندے نے اس طرح جو بھی دلاشا لے کے انہوں بہانے سے لے، ہاں جی، بہانے سے لے کے گیا ہے۔ اس کے بعد بھائی میرے نے 10 بجے کوئی 10-20 منٹ کے کال کیا۔ وہ بھائی میرا بول رہا ہے بھی میں سوجہ آباد ہوں، آ رہا ہوں۔
اس کے بعد پھر میرے بھائی نے فون کیا, موبائل آف ہو گیا. آپ لوگوں کو لگا آس پاس کے آس رشتہ پاس ہوگا بھئی, اگے بھی چلا کوئی جاتا ہے, جانور عید لینے ہے چلا گیا ہوگا. بھئی جانور لینے چلا گیا. جب میری وہ باجی جو ہے اس کے گھر چلا گیا ہے, عید کا دن ہے. یہ عید والے دن اس صفاق نے عید قتل والے کر دیا. دن 2-2:30 بجے تو بعد اس نے 4:30 بجے کے قریب اس کے ساتھ گیا وہ, اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں. پھر نہیں آیا. جب آپ کے بھائی کی میت آپ کو ملی, یقیناً پولیس کی بڑی ایفرٹ ہے اس کے ہاں اندر, جی. وہ کس حال میں تھی؟ اس اے حال تھی, وہ پہچان اچ نہیں آندا سی. اللہ وہ اللہ, بالکل پہچان نہیں تھا. وہ بہت ظالم بندہ ہے, اس طرح دی اس دی حالت کر دیتا ہے. وہ بالکل پہچان نہیں آندا سی. پہچان کیا ہے آلہ سی وہ دے کان میں لگا ہوا تھا. تے اس کے بعد جرا نا جتی کپڑے جرے گھر سے پا کے نکلے ہیں, وہ اس کے اساں وہ اس سے شناخت شناخت کی ہے, ویسے نہیں. آپ کو پیار کرتا تھا آپ کا بھائی؟ ہاں جی, پیار کرتا تھا بہت. میرا بھائی اچھا تھا, سیدھا سادہ بندہ تھا, کسی کے پاس وہ کبھی لڑائی نہیں کرتا. ہمارا والد ہے بیمار ہے, کینسر کا مریض ہے. والدہ میری ہے وہ بھی بیمار ہے. بچیاں انہیں دونوں ہیں جریا, وہ بھی بیمار ہیں. اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے کے آپ اس کی بیٹیوں کو پال سکیں باپ بن کے, لیکن اصل باپ تو اصل باپ ہی اللہ ہوتا پاک سا کو ہے. کیا ہمت دے. مطالبہ ہے آپ کا؟ انصاف کیا چاہتے ہیں؟ اسا انصاف یہ چاہتے ہیں, جرا ظالم ہے پھانسی چاہیے, پھانسی کی طرف. ہاں جی. اس کیس میں پولیس نے جتنی ایفرٹ کی, ایک ان نون ڈیڈ باڈی تھی, اس کو ٹریس کیا گیا, پھر اس کے قاتل کو ڈھونڈ نکالا گیا, کوئی اس کی گمشدگی کی ایف آئی آر نہیں تھی. پولیس نے مدعیت پہلے خود لی, اور پھر یہ سارا معاملہ لا کر مدعیوں کا دروازہ خود کھٹکھٹایا کہ بھائی آپ کا اپنا پیارا اب اس حال میں ہے. کیا معاملہ تھا؟ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا پورا معاملہ. یہ کہتے ہیں کہ قاتل سے ان کی کوئی دشمنی نہیں. پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو کیا کوئی دشمنی سامنے آئی؟ ہم تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ زوار کس قسم کا انسان تھا اور جس نے اسے قتل کیا, کیا اس کی کوئی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ السلام علیکم جی. زوار کو جانتے تھے آپ بچپن سے؟ کس طرح کا انسان تھا؟ بہت اچھا انسان تھا. کوئی لڑائی جھگڑا اس کا؟ زوار کو قتل کرنے کی اصل وجہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آتی ہے؟ پیسے ہی سمجھ آتے ہیں بس, اور کچھ نہیں. اور کچھ نہیں. صحیح. تو زوار کی فیملی میں جو اس کے بہن بھائی ہیں, کیا تمام لوگ اتنے ہی پیسے والے جتنے زوار ہیں, یا زوار کے پاس زیادہ تھے؟ نہیں, وہ جو بھی کماتا تھا نا اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا تھا. سب کو پتہ تھا اس بات؟ جی, اچھا. پوری فیملی کو کیا ہونا چاہیے؟ سزا ہی ملنی چاہیے. قاتل کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ قاتل کو جانتے ہیں؟ قاتل کس طرح کا انسان تھا؟ پہلے بھی قتل کیے میں اس نے. صحیح. زوار نے ایسے شخص سے دوستی کیوں رکھی ہوئی تھی؟ پار کرنے والا تھا, ڈھانڈے نا بیاہ تے ڈھانڈا لینا. اچھا, اس لیے بلایا تھا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ پھانسی ہونا چاہیے. پھانسی ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا, جو قتل کرتا ہے, قاتل ہوتا ہے, یا جس پہ پرچے ہوتے ہیں, تو گاؤں کے لوگ تو اسے نفرت کر جاتے ہیں, تو زوار نے کیوں دوستی رکھی ہوئی تھی اس کے ساتھ؟ بس اس کو نہیں پتا تھا کہ اب میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ چلا گیا, اس کی باتوں میں آ گیا. قاتل کو آپ سب جانتے ہیں ویسے؟ ہاں جانتے ہیں, وہ بھی قریبی علاقے کا ہے. اچھا, اس کی ریپیوٹ کیسی ہے, لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسے؟ اس کے ساتھ کوئی نہیں اٹھتا بیٹھتا تھا, کیونکہ وہ خراب انسان تھا. پہلے بھی اس نے ایک ایسے ہی قتل کیا تھا, اس نے وہ کرایہ کا مسئلہ تھا, اور ایک خاتون کو تیزاب سے بھی جلایا تھا اس نے. ہاں, کیونکہ اس نے پہلے بھی 2 ایسے واقعے کیے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے اس نے اس کو ہچکچاہٹ کیے بغیر اس نے اس کو مار دیا. وہ ویسے کسائی ہیں, کسائی کا کام کرتے ہیں, لیکن اس کے فیملی میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ وہ خراب قسم کا انسان تھا. اس نے پہلے بھی 2 قتل کیے تھے. نہیں, تو فیملی میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے, تو گاؤں میں کیوں پھرتا پھر وہ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا, کیونکہ گاؤں والے چاہیں تو روک سکتے ہیں. اب روکیں گے نا آپ کسی لوگ؟ کے گھر نہیں جاتا تھا, کیونکہ کوئی اس کو آنے نہیں دیتا تھا. ہاں, کیونکہ وجہ یہ میں نے سنا ہے کہ زوار کوئی 2 نمبر پسٹل بھی خریدنا چاہتا تھا لائسنس کے بغیر, اس لیے اس نے اس سے دوستی رکھی ہوئی تھی. زوار, ہاں, نہیں, زوار اس قسم کا انسان نہیں تھا. زوار بہت ہی شریف تھا, اور اس کا کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں ہوا. کوئی پسٹل وغیرہ تو نہیں لینا چاہتا تھا؟ نہیں, وہ کیسے لے لیتا, کیونکہ اس کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا. یعنی یہ بات جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے یہ, ان کے لیے ٹھیک. پسٹل نہیں لینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زوار کیا پسٹل وغیرہ خریدنا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی کوئی لڑائی جھگڑا خاندان میں کسی کے ساتھ؟ تو یہ جو قاتل ہے اس کے ساتھ پھر دوستی کی وجہ کیا سمجھ آتی؟ پتہ کہنا ہے. ہاں,
कहीं को पता होना तो कोई रोक लेगा उन्हें हाँ। लेकिन अचानक उनको मतलब उन्हें बच्चे बकायल मिल की रखे थे उनको सजा क्या मिलनी चाहिए इसको? सजा मिलनी चाहिए, मतलब फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। कहते हैं कि गलत दोस्ती इंसान को ले डूबती है। यकीनन जवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका खुद का दिल साफ था लेकिन दोस्त उसने गलत चुन लिया। उस दोस्त ने उसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अब मकतूल को इंसाफ कैसे मिलेगा? आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं कि बहुत सारे ऐसे छुपे हुए सच हैं जो हमारे नाज़रीन के सामने अभी तक नहीं आए। मेरे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं, बशीर हिराज साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने सारे मामले को कैसे डिग आउट किया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बशीर साहब। एक नॉन डेड बॉडी थी जिसकी कोई गुमशुदगी की इतला नहीं थी। जी जी। आप लोगों ने उसको यकीनन पीएफएस से भी उसके सैंपल्स भिजवाए। कितने दिन लगे इस सारे मामले को इसकी फाइंडिंग्स के लिए, और फिर आप इसके जो लवाहिकीन हैं वर्सा उन तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये ईद जो गुजरी है, ईद के ईद उल अज़हा जी, ईद उल अज़हा, उसके सेकंड डे हमें इतला मिली है 11 बजे के करीब कि एक डेड बॉडी, एक किसान है वो अपने खेतों को पानी लगाने गया यहाँ सिटी से 5 किलोमीटर दूर, तो उसने बताया कि यहाँ एक डेड बॉडी मौजूद है। तो वहाँ फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे हैं, मेरे SHO से बांध थे, मैं था। तो वहाँ एक बॉडी मिली है जिसकी कमर में एक फैर लगा हुआ था और काफ़ी स्मेल वगैरह भी आ रही थी। इसके अलावा इंजरीज नहीं थी उसके ऊपर? कोई और इंजरी ब्रूजेस ये जी जी नहीं, कुछ भी नहीं था जी। और बॉडी ब्लड मौजूद था। तो जब हमने अच्छी तरह उसको एग्जामिन किया तो उसकी कमर में एक फैर लगा हुआ था। आसपास कोई घर नहीं था उनमें? आसपास कोई घर नहीं है, खेत हैं, कपास के खेत हैं और घर काफ़ी दूर तक कोई नहीं है। ठीक है। और एक बाइक पड़ी थी वहाँ, मोटरसाइकिल मिली हमें। ठीक है। तो हमने अपने तौर पर वहाँ ऐलानात करवाए, फिर हमने उसकी पिक्स वगैरह लेके सोशल मीडिया पे डाली कि शायद कोई पता करें, किसी का कोई बंदा गुम हो, को पता लग जाए ये कौन है। हमें शाम तक कोई पता नहीं लगा। हमने इस दौरान उसको ना अपनी मुद्दत में हमने FIR लॉन्च की है। ठीक है। उसका पोस्टमार्टम करवाया। स्टेट की मुद्दत में? जी जी, स्टेट की मुद्दत में। ठीक है। हमने और बाकायदा उसकी तदफीन की है। फिर आफ्टर पोस्टमार्टम जनाजा करवाया हमने खुद। ठीक है। उसकी तदफीन की है। हमारे पास एक ही तरीका था उसको ढूंढने का कि एक तो मोबाइल मिल जाता, वो नहीं मिला। बाइक थी, बाइक के इंजन नंबर, चेसी नंबर से और रजिस्ट्रेशन नंबर से हमने उसको ढूंढना शुरू किया। चेसी नंबर और इंजन नंबर, क्या रजिस्ट्रेशन उस मकतूल के नाम पे थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा। उसके नाम कुछ भी नहीं था। अच्छा। हमने वो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, बड़ी टेक्निकली हमने उस पर मेहनत की है। हमने उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जिससे नंबर लेके हमने कंपनी से रब्ता करके पता किया कि ये कंपनी से किसने ख़रीदा है। हाँ। तो वो मुल्तान की एक पार्टी का पता चला, हम वहाँ पार्टी को मिले। पार्टी से आगे 8 जगह मोटरसाइकिल बिक चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। और कोई डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं कोई थी, ट्रांसफर डीड नहीं, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और बाइक उसी पिछली पहले बंदे के नाम है। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम चूंकि मिलते रहे फर्दर, हमने अपनी यानी छुट्टी, कि आप एक पार्टी से दूसरी को मिले, हाँ, यानी उससे किसने खरीदा, उससे किसने खरीदा, हम इस तरह हमने ना उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। हमने ईद की छुट्टियाँ छोड़ दी सारी, और हमने थर्ड डे जो है ना वो इनके घर पहुँच गए। जवार हुसैन नाम का बंदा था। घर वालों ने गुमशुदगी की कोई ना कुछ भी नहीं किया, उन्होंने इतला तक नहीं दी। FIR हमने अपनी मुद्दत में दर्ज कर दी। हम उनके घर पहुंच गए, उनसे पूछा भी वो आपका बाइक किसकी है? उन्होंने कहा जी हमारा भाई है जवार हुसैन, उसकी बाइक है। तो किधर है? उन्होंने कहा जी पता नहीं किधर है, वो 3 दिन पहले बस निकला था, हम समझे कहीं काम पे चला गया होगा। पिक्स दिखाई उसकी, यही है? हाँ यही है। तो उन्होंने कपड़े, जूते और बॉडी से पहचान लिया। फिर हम उनको ले आए। हमने उनकी बकायदा उसका मोबाइल नंबर लिया, जवार हाँ, से उसका मोबाइल नंबर लिया, कैमरे हैं शहर के वो देखे, CDRs ली उसके नंबर्स की। तो हम कातिल तक बहुत जल्दी कातिल तक पहुंच गए। ठीक है। कातिल को जब आपने अरेस्ट किया तो वो इजीली मान गया? हाँ जी, वेरी फर्स्ट डे उसने एडमिट कर लिया कि वो सारी उसने कहानी। उसने क्या बताई? रीज़न बिहाइंड जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें पता लगा है कि मकतूल के पास 3 लाख से ज़्यादा पैसे थे और ये इसके साथ इसका अपना आना जाना था। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कातिल है ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, एक एसिड बर्न का केस है, एक मर्डर जी ऑलरेडी ये है, डिक्लेयर्ड है। जी जी। इन दोनों केसेस का मुलजिम गांव में तो बात बड़ी जल्दी फैलती है, तो ऐसे मुलजिम के साथ जवार हुसैन का उठना बैठना क्यों था? क्या ये खुद क्रिमिनल माइंडेड था मकतूल? नहीं, मकतूल तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। अच्छा, ये क्रिमिनल माइंड नहीं था, लेकिन चूंकि एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही लोकेलिटी के रेशे हैं, ये मुलजिम मकतूल का घर सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो देहात में 3 किलोमीटर कोई इतना वो नहीं होता, एक दूसरे को सारे जानते क्या होते कह के लेके गया? अच्छा, इस तरह हुआ कि इसको जो हमें पता लगा है
कि इसको कोई वेपन को शौक हुआ मकतूल को कि मेरे पास ना वो होना चाहिए, असला होना चाहिए। कातिल ने ना उसको ये कहा कि मैं आपको ना वो लेके देता हूँ, आप कुछ पैसे को अरेंज करो। तो ये जो मकतूल था, एक तो पैसे सारे हर वक्त अपने पास रखता था, ये इसको कोई जानवर मिले सस्ते दामों वो ख़रीद लेता था, आगे थोड़ा महंगा बेच के इसको 2-4 हज़ार बच जाते थे। ये जब घर से निकला पैसे इसके पास थे, ये इसको लेके आया है, कहीं घुमाता शुमाता रहा है, फिर आने ना इसने इसको फायर मारा है वीराने में जाके, और पैसे उसके निकाल के मोबाइल निकाल के वो। अभी भी मुदय्यत स्टिल स्टेट के पास है? नहीं, उसको हम जब आपको नहीं लगता कि ऐसे मुदई जिनको अपने भाई की गुमशुदगी की इतनी टेंशन नहीं थी, उनको मुदय्यत देना इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा? आप स्टेट को अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी, ताकि ये कातिल जो पहले भी ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है, मुदइयों की वजह से ही बाहर निकल आता था, तो स्टेट मुदय्यत रखती तो शायद ये बाहर ना निकल। मैम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी एविडेंसेस कलेक्शन कर ली है इसमें कि मुलजिम के बरी होने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई चांस नहीं है। चलें, हैट्स ऑफ टू योर स्ट्रगल। टेक्निकल एविडेंसेस है हमारे पास, जिसको किसी सूरत में ना कोर्ट में रिबट नहीं किया जा सकता। मकतूल के भाई को इसलिए बनाया कि जिसको अपने भाई का जितना दर्द है वो मुझे नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, जो एविडेंस। लेकिन गुमशुदगी का भी टेंशन नहीं, वो असल में देहात में मैं इस चीज़ को इसलिए भी समझती हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, उनको 2 वक्त की रोटी की टेंशन होती है, उन्हें किसी के गुम जाने या किसी के दुनिया से चले जाने का उतनी टेंशन नहीं होती। बाकी रिश्तों का दुख तो सबको होता है। सिर्फ ये एक मेरा सवाल था, लेकिन इस एस्पेक्ट को आप नज़र में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको लगे कहीं पे कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और कहीं कोई गलती या कोई लफ्ज़िश रह रही है, तो स्टेट थर्ड पार्टी होती है, आप वापस कन्वर्ट कर सकते हैं मुदय्यत को। बहुत शुक्रिया हिराज साहब, आपने डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, मुल्ज़िम की तरफ रुख करते हैं और सुनवाते हैं आपको कि वो हमें क्या कहानी सुनाता है। वो लपेटेगा बात को, लेकिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है, कत्ल छुपता नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो सफाक मुल्ज़िम मौजूद है। इसका मकरू चेहरा मैं सारी दुनिया को दिखाती, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है शायद कि आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे शनाख्त परेड कहा जाता है उर्फ़ आम में, इसकी वजह से इसका चेहरा मैं कानूनी तौर पर सामने नहीं ला पाऊँगी अपने नाज़रीन की, लेकिन वक्त के साथ ये इसका चेहरा सोशल मीडिया पर ज़रूर दिखाया जाएगा। ये मुल्ज़िम क्या चाहता था, पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, क्या भूल गया था ये कि यहाँ जुल्म करता रहेगा, इंसानों से बचता रहेगा, लेकिन वो नीली छतरी वाला ऊपर मौजूद है, आखिर ये कटहरे में आएगा, और आज आ गया। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ज़फ़र हुसैन। ज़फ़र हुसैन। कितनी उम्र है? 34-35 साल। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 ही बेटे हैं। अच्छा, तो तुम खुद साहिब औलाद हो, किसी ऐसे शख्स को कत्ल कर देना जो साहिब औलाद हो, उसकी मासूम बेटियां हो, तुम्हारा दिल नहीं दहला? गलती हो गई। गलती हुई या गुनाह हुआ? जैसे समझ लें, इंसान एक गलती करता है, वो रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर देता है, वो दूसरी गलती करता है, अल्लाह फिर उसे छोड़ देता है, लेकिन जब वो गलती बार बार करता है तो वो गुनाह अजीम बन जाता है। उस गुनाह अजीम की पकड़ देखी आज तुमने? शर्मिंदा हूँ। अच्छा, ज़रा अपने पहले कर्मों की दास्तां सुनाओ। पहला कत्ल कब किया था और कैसे किया था, वो कौन था? बस पहले लालच में आ गया था, सैयद था टिब्बी सैदा का, उसको ले गया तो उसको फायर मारा था। तुम्हारे पास वेपन कहाँ से आया? दोस्त था, उससे ले लिया था। तुम्हारे दोस्त गुंडे हैं या नौसरबाज हैं? डकैती वगैरह भी करते हो? पहले करता रहा। डकैती पे पलते हो? मजदूरी कर रहे थे, कभी चोरी कर ली बस। असल तो चोरी है ना, मजदूरी तो ड्रामा है, दिखावा है। मुझे ये बताओ कि वो जो कत्ल किया था उससे जान कैसे छूटी तुम्हारी? फिर पैसे दिए थे मुद्दे राजनामा किए थे। प्रेशराइज किया था उन्हें? कितने पैसे देके सुलह की थी? 14 लाख। 14 लाख में कितना अरसा लगा था इससे जान छुड़ाने में? 5-6 साल लगे थे। तो इन 5-6 सालों में तुमने सबक नहीं सीखा? लालच आ गया। अच्छा, चले, ये तो हो गया लालच। अब एक खातून के चेहरे पे तेजाब भी फेंका था, उससे क्या लालच था कि नजर बुरी थी उस पर? उसके वालिद से तनाज़ा था। तो वालिद को तो कुछ नहीं कहा तुमने? किस चीज़ का तनाज़ा था उसके बाप के साथ? पैसों का था। कितने पैसे लेने थे? बस 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार। तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे या तुम्हें डैमेज करे, तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी? उनको तकलीफ होगी। ये प्लानिंग कैसे करते हो? बस जब चलो तेजाब वाली प्लानिंग सुना दो, कैसे की, कितनी देर उनके घर में रहे, उनसे क्या तकलीफ थी, मामला सारा क्या था? 2-4 दिन मैं घूमता रहा, सोचता रहा कि उसके वाले माँ मुझे उसको तेजाब फेंकूँ, फिर वो नहीं था। फिर अगले दिन फिर चला गया। उसके बाद वो भी नहीं था। फिर बाजार से तेजाब लिया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं रह सकता, फिर मैंने उसको फेंक के मैं भाग गया था। उसके मुंह पे फेंका था? जी हाँ।
तुम्हारे सामने वो तड़फी? वो तड़पती रही होगी, मैं भाग गया था। भाग गए थे, फिर वो पर्चा भी तुम पे हुआ होगा, FIR? जी है। फिर उसमें जान कैसे छुड़ाई? उसमें भी राजीनामा हो गया था। कितने पैसे दिए थे? वो 40-50 हज़ार। वो खातून शादीशुदा थी? नहीं, वो गैर शादीशुदा थी। गैर शादीशुदा। उसकी तुमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, बात वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि लेना देना बाप के साथ था और तेज़ाब बेटी पे फेंक दिया। बेटी पे नज़र तो नहीं थी? नहीं, नज़र नहीं थी। तो भाई जहाँ सबको गोलियां मारते फिर रहे थे, उसके बाप को कहा थप्पड़ ही मार लेते, वो इतना गुस्सा था। उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर दी? तुम्हारी बीवी के ऊपर आके कोई तेज़ाब फेंक जाए, तुम पे क्या गुजरेगी? तकलीफ होगी, बस गलती कर। हाँ, ये गलती कर दी, गलती हो गई, गलती से हो गया, ये सब कहना बहुत आसान है। ये गलतियाँ ही तुम लोगों को इतना निडर बनाती है। तुम समझते हो कि ये जंगल है, यहाँ पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये वर्दी वाले तो शायद टाइम पास कर रहे हैं या पिकनिक कर रहे हैं थानों में, तो हम लोग जो मर्जी कर लें। हैं, कोई पुश्त बनाई भी है तुम्हारे पीछे? कोई सियासी हाथ है? नहीं, कुछ नहीं है। कोई लंबरदार का हाथ है? नहीं, कोई हाथ का नहीं, नहीं। खुद ही गुंडे का बने हुए हो। रियासत में एक अलग रियासत बनाने चला था, ये क्या चाहता था? वापस इसी की तरफ आके आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मुलज़िम का रुख करते हैं और इससे जानते हैं कि ये पहले तो जराइम की दुनिया का बादशाह बन ही रहा था, अब इस नए जुर्म का मंसूबा बनाते हुए भी एक बार इससे अल्लाह से डर नहीं लगा? हाँ भाई, ये पीछे तो तुम जुर्म पे जुर्म करते आ रहे थे, सज़ा भी पाते आ रहे थे, फाइनेंशियल नुकसान भी तुम्हारा हो रहा था, एक के बाद एक मुद्दई से तुम्हें सुलह करनी पड़ रही थी, तो ऐसे में तुमने सोचा नहीं कि मैं अब फिर एक गुनाह करने जा रहा हूँ? इसका मंसूबा कैसे बनाया? इसका मंसूबा ऐसे बना, ये जवार हुसैन की मेरे से दोस्ती हो गई। कैसे हुई दोस्ती? असल में ये इसका तनाज़ा चल रहा था अपने ससुर के साथ, कोई ज़मीन का। अच्छा। और ये पिस्टल ख़रीदना चाहता था ससुर को मारने के लिए? ससुर के साथ लड़ाई करने के लिए मेरे पास आया कि मुझे पिस्टल दे दो। मैंने कहा चलो मैं आपको पिस्टल दे दूंगा। वो मैंने वादा किया, लेकिन मुझे लालच इस बात पे आई कि ये इसने कोई मवेशी रखे हुए थे, ईद पे इसने मवेशी बेच दिए। कितने के? वो बता रहा था तकरीबन 2 लाख के ऊपर हैं तकरीबन। एक दोस्त से भी इसने लाख रुपया लेना था, वो भी इसने ले लिया थे। वो मैंने प्रोग्राम बनाया, चलो भी ठीक है, इसको मैं कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, पैसे मेरे पास आ जाएंगे। फिर मैंने इसको ईद वाले दिन इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कितने का पिस्टल तुमने इसे बताया था कि मिल जाता आसानी से? मैंने कहा 20,000 का मिल जाएगा। ठीक है। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, ये आ गया, इसके साथ मैं रवाना हो गया। फिर मैं रोड की तरफ नहीं आया, ये ना पैसे अपने पास रखता था। अच्छा, साइकिल में के। अच्छा। मैं इस बात कहते कि इसके पास पैसे काफ़ी हैं। अच्छा। फिर इसको मैं रोड की तरफ ना ले, इसके कहाँ जाना है, मैंने कहा जलालपुर जाना है, वहाँ आदमी से वहाँ पैसे लेने हैं। फिर मैं इसको ये रोड की तरफ, मैंने कहा रोड नहीं जाना, आगे पुलिस वाले रोक लेते हैं। फिर मैं सुई गया से कच्चा रोड है उसकी तरफ ले गया। उसकी तरफ ले के फिर मैं को आ गया, शाम का टाइम, रात हो रही थी, शाह के वक्त। अब रास्ते में आते 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 सुई गया की एक सुनसान जगह आ गई। वहाँ मैंने कहा कि यहाँ कोई नहीं है। मैंने वहाँ उसको रोक लिया, आप यहाँ पे ना खड़े हो जाएं, यहाँ पे पिस्तौल लेने के लिए आदमी देने के लिए आ रहा है। ठीक है। फिर वो उसने जब मोटरसाइकिल खड़ी की, मेरे पास पिस्टल तो मैंने दबाया हुआ था अपने साथ। फिर मैंने उसको फायर मार दिया। कहाँ मारा? पीठ के पीछे। तड़प रहा था वो उस वक्त? वो गिर गया। फिर मैंने उसकी तलाशी की। फायर पीठ पे क्यों मारा? अगर तुम उसे कत्ल करना चाहते थे, सीने पे, दिमाग में, कहीं भी मार सकते थे। वो आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके ना उसका रुख मैं उसकी पीठ के पीछे था। तो तुम्हें यकीन हो गया तुम्हारे एक फायर से वो मर जाएगा? वो जो नीचे जब गिर गया, अगर ना गिरता तो फिर और भी मैं फायर मारता। वो गिर गया, मैंने कहा ये मर जाएगा, फिर वो फायर ना किए। ठीक है। फिर मैंने उसके मोटरसाइकिल में तलाशी की, वहाँ भी पैसे ना मिले। फिर जब वो तड़प रहा था, फिर मैं चला गया पीछे, अपने घर चला गया। पैसे मिले? पैसे 5,000 मिले और कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। पिस्टल लेने वो आया था तो उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं तो उसकी जेब में पैसे, उसने मोबाइल तो था? हाँ, मोबाइल था, वो भी तुम ले गए? वो भी ले गया तो मैंने नहर में फेंक दिया था। ठीक, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसे तुम 20,000 रुपया रेट बता रहे हो, पैसे भी वो हर वक्त जेब में रखता है, वो 5,000 रुपये लेके तुमसे पिस्टल खरीदने आ गया है, ये तुम झूठ बोल रहे हो? तुमने पैसे ले लिए हैं उसके साथ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तुम देना नहीं चाह रहे या तुम रिकवरी की तरफ नहीं आना चाह रहे, इस वजह से तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा ऐसे, उसके पास पैसे नहीं थे। एक कातिल हो, तुमने एक पे एसिड फेंक दिया, एक के बाद एक कत्ल करते आ रहे हो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर लूं? नहीं थे पैसे उसके पास। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सारे पैसे निकाल लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं चला गया अपने घर, वहाँ जाके सो गया। तुम्हें नींद आ गई सुकून की?
बस मुझे पता था किसी को पता नहीं है मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर वो पुलिस वालों ने मुझे ट्रेस कर लिया किसी डेटा कॉल के जरिए से, फिर वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बस मैंने तुम इस दौरान उसके घर के आसपास से गुजरे या उसके घर वालों को जानने की कोशिश नहीं की कि वो अपने बेटे को ढूंढ तो नहीं रहे? नहीं, मैं उस साइड पे आया भी नहीं। फिर तुम जानते हो कि वाहिद कफील था अपने घर का, हाँ ये इल्म है। इसके बावजूद तुम्हें डर नहीं लगा अल्लाह से? बस गलती हो गई बस। ये गुनाह है, ये गलती नहीं है। पकड़े ना जाते तो आज भी शर्मिंदगी नहीं थी, शायद किसी और को कत्ल कर देते। बस गलती हो गई है, बस माफ़ी चाहता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी तुम्हें? अब उसकी बेटियां माफ़ करेंगी, उसकी बेवा करेगी, माँ बाप करेंगे। कैंसर के मरीज़ है ना उसके वालिदैन में से एक, है और वो कफील था अपने घर का। किसी के बच्चों को यतीम करके तुम समझती हो कि तुम्हें अल्लाह माफ़ कर देगा, तो कत्ल की माफ़ी तो नहीं है। बस गलती हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ बस। अपने लिए माफ़ी है, तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए, अपने लिए मांगो अब सज़ा। बस माफ़ कीजिए बस। नाज़रीन, ये शख्स अपने लिए तो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन दूसरों के लिए इसके पास एक ही सज़ा थी और वो मौत थी। इस सारे केस को इंटेरोगेट जिन्होंने किया वो आईओ मौके पे पहुँचे, उन्होंने मौके पे क्या क्या देखा, वहाँ पर क्या मनाजिर थे, ये शख्स जिस वक्त रेड किया गया ये क्या कर रहा था, ये बासानी पकड़ा गया या फलांगा दीवारें, ये तमाम चीज़ें मौके पे मौजूद आईओ ने अपनी आंखों से देखी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हसनैन साहब, आप मौके पे वहाँ पहुँचे? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब ये शख्स अपने घर था तो ये तो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। जी जी। आप लोगों ने अरेस्ट करने के लिए जब रेड किया तो इसने आगे से कोई रेजिस्टेंस की? नहीं, इसको हमने इतना मौका नहीं दिया कि हम रेजिस्ट कर सके, तो हमने अपने नफरी के साथ थे, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको मैनेज करके रेड करके गिरफ्तार किया मौके से। उसके बाद जब इसको इंटेरोगेट किया तो इसने बतलाया कि जो है मैंने ये वकूआ किया था। इसको हमने पहले ही जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से इसने पैसों के मुतालिक जब मैंने पूछा तो ये कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या इसने उसकी जेब से निकाले थे पैसे? जी, इसको ये था कि उसकी मोटर बाइक की जो टापें हैं उसमें कुछ पैसे हैं, 3-3.25 लाख रुपया। लेकिन उस दिन क्या ये निकाल के ले गया था पैसे? ये कहता है कि उस दिन जब मैंने उसको मोटर बाइक को चेक किया, जब कत्ल करने के बाद उसमें पैसे नहीं थे, उसकी जेब में पैसे थे 5,000 रुपया। तो क्या उसके घर वाले इस बात को मानते हैं कि पैसे वो घर रख के गया था? नहीं, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब है पैसे इसी के पास? इसी के पास हैं सारे पैसे। ठीक, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इंटेरोगेशन जब मजीद करेंगे तो इससे वो तमाम चीज़ें रिकवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, मेरिट पे फाइनल किया जाएगा। मुल्जिम आज अपने लिए तो बार बार माफ़िया मांगता है, लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार और आला अदलिया से अपील है कि ऐसे लोगों को मुआफ़ी नहीं देनी चाहिए। अपने लिए तो मुआफ़ी का तलबगार है, लेकिन लोगों को ये सज़ा ही देता रहता था। हाँ भाई, घर वाले मानते नहीं हैं कि उसके पैसे घर पे हैं। जाहिर है अगर तुम्हें इल्म था तो पैसे तो तुम्हारे पास हैं। पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब से पहले कितनी वारदातें और कर चुके हो? 5-6 पर्चे हैं पहले। 5-6 पर्चे? तो भाई तुम मुझे ऐसे सुना रहे हो जैसे हज उम्रा करके आए हुए हो, बड़ी आसानी से सुना रहे हो। क्यों जी हसनैन साहब, 5-6 पर्चे हैं? इस पे पहले भी एक डिकेटिव विद मर्डर का पर्चा है, तेजाब का पर्चा है, उसने अपनी कजन पे फेंका था, उससे पहले भी ये मर्डर कर चुका है। उसमें फिर इसने जबरदस्ती जेल से भागा, फिर इसने सुलह की गन पॉइंट उनके साथ, और उसके बाद ये फिर दोबारा मर्डर कर दिया। ये दुबई यानी आदि है? आदि। हाँ, किसके इमाम पे ये सब कर रहे थे? किसी के नहीं करते। तो दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं रियासत में रियासत बनाऊंगा? हैं? बस शैतान को गलबा कर गया बस। ये शैतान तुम पे कब कब हावी होता है? जब तुम तेजाब फेंकते हो तब हावी हुआ है? जब तुमने पहला कत्ल किया, वारदात की, चोरी की, डकैती की, तब हावी हुआ। फिर तुम अदालत में गए, वहाँ से तुम जज फैसला सुना रहे हो और तुम अदालत से भाग रहे हो, तब हावी हुआ। कानून के रखवालों का मजाक बना रहे हो, तब हावी हुआ। उसकी पहले जो मर्डर किया उसकी फैमिली को गन पॉइंट पे प्रेशराइज किया, तब शैतान तुम पर हावी हुआ। फिर तुमने उसके बाद तेजाब फेंका एक खातून के ऊपर, तब शैतान हावी हुआ। फिर उस फैमिली को प्रेशराइज करके सुलह की, तब शैतान हावी हुआ। फिर तुमने फिर वारदातें की, फिर शैतान हावी हुआ। ओ भाई, अब फिर कत्ल कर दिया, फिर शैतान हावी हुआ। मुझे तो लगता है तुम खुद शैतान हो। इंसान खता का पुतला, गलती हो गई थी। ये खताएं नहीं है, ये गुनाह है। कोई शर्मिंदगी नाम की चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? गलती हो गई है, बस उससे तौबा चाहता हूँ। माफ। पकड़ा गया हूँ इसलिए, ये बार बार पकड़ा जाता हूँ, बार बार तौबा करता हूँ, फिर बाहर निकल के वही कुछ करता हूँ। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। इस सारे केस में स्टेट ने मुद्दत अपने हाथ में ली, लेकिन जब मुद्दई फैमिली सामने आई तो स्टेट ने मुद्दत को कन्वर्ट कर दिया। ये शख्स समझता है कि मुद्दइयों को डराएगा, धमकाएगा, एक बार फिर बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये भूल गया है कि हर मर्डर में थर्ड पार्टी
स्टेट ही होती है। जैसे कि डीएसपी साहब ने भी कहा कि अगर हमें कहीं पर भी लगा कि कहीं जो इंसाफ है उसके तकाज़ों में कोई लग़ज़िश आ रही है या मुद्दई डर रहा है, प्रेशराइज हो रहा है, 2 वक्त की रोटी से खौफज़दा है कि न जाने उसके साथ क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन लॉ जो है वो उसको एक्सपेंसिव लग रही है, तो हम मुद्दई जो है वापस अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसे सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। और कहते हैं कि गुनाहों का जो पैमाना है, जब वो उसका घड़ा भर जाता है तो उसके बाद आप अपने अंजाम को पहुंचते हैं। अल्लाह पाक रस्सी ढीली ज़रूर छोड़ता है, लेकिन जब वो लगाम खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिर जाता है। तो इस शख्स के साथ भी कुछ इस दफ़ा ऐसा ही हुआ। इसने मासूम बेटियों से उनका बाप छीन लिया, उनको यतामत की ज़िंदगी दे दी, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके अपने बच्चे भी फांसी के बाद यतीम ही कहलवाएंगे, इसकी अपनी भी बीवी बेवा ही कहलाएगी, इसके वालिदैन भी उसी तरह दुख से रोएंगे जैसे उसके वालिदैन रो रहे हैं, या इससे पहले कई माँ बाप को इसने रुलाया है। इंसान अपने अंजाम से बेखौफ होकर गलती के बाद गुनाह तो कर बैठता है, लेकिन जब अंजाम को पहुंचता है तो फिर थर थर कांपता है, जैसे कि अब शायद ये इस तरह कांप रहा है। मैं अपील करूंगी अदालत से कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और मिसाल रकम की जाए। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।